we are going to discuss the spherical mirrors. What are the spherical mirrors? As you know that in the previous class you have read about the plane mirrors. Now we have the spherical mirrors. A spherical mirror is a part of hollow sphere of a glass and it has a polished surface on one of its faces. तो ये hollow sphere का part होते हैं जिसकी एक साइड एक फेस को हमने पॉलिश किया होता है और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग होती है. If the outer surface of the mirror is polished and inner surface behaves as the reflecting surface is called concave mirror. Look at that. ये अगर outer side पॉलिश्ड है और इनर साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉन्केव टाइप होगा. बट अगर उसकी इनर साइड पॉलिश्ड है लेकिन आउटर साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग है देन इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे. सो इट इज़ कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर एंड इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड, तो वो इनसाइड कर्व्ड है. बट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज बल्ज्ड आउटवर्ड, तो वो आउटवर्ड बल्ज आउट हुआ होता है. नाउ लुक एट दैट. इफ यू हैव द स्पून देन लुक एट दैट. तो आपको दोनों में से ऑब्जर्वेशन आपकी इमेजेस नज़र आएंगी, एक में उल्टी नज़र आएगी एक में सीधी नज़र आएगी. सो इट बिहेव एज ए कॉन्केव टाइप एंड इट बिहेव एज ए कन्वेक्स टाइप. इट इज बल्ज आउट बट इट इज कर्व्ड इनवर्ड. सो लुक एट दैट. दिस इज कॉन्केव टाइप and this is convex type. It's bulge out but this is curved inward. So this is concave and this is convex. So there are some terms related to the spherical mirrors. Look at that. Pole. The geometrical center of a spherical mirror is called a pole. Look at that. This is the center of this mirror. So geometrical center of the spherical mirror is called pole. It is denoted with the P. Then next is the center of curvature. So center of sphere, this sphere of which the spherical mirror forms a part है, जिसका ये एक हिस्सा है, उसका सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो इट इज द रेडियस ऑफ sphere of which the spherical mirror forms a part, and you can say that the distance between P and C, that is distance between pole and center of curvature, is called the radius. So PC equal to R. So this is the radius. Then principal axis. The imaginary line passing through the pole and the center of curvature, that is the line PCX, is called the principal axis of the mirror. Then aperture. Aperture, the length mm dash, जो mirror की length होती है mm dash of the perimeter of the spherical mirror. The length mm dash of the perimeter of the spherical mirror is called its aperture. And the next is the principal focus, the point on the principal axis where a beam of light traveling parallel to the principal axis after reflection actually meets. तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करें actually meet. तो जब कनकेव पे ये इंसिडेंट करती है मिरर पे, जो पैरेलल रेस इंसिडेंट करती है, then after reflection they meet at this point, that is on the principal axis between the P and C, and this point where there the reflected rays meeting after reflection, this point is called principal focus. और इस पॉइंट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे. सो एक्चुअली मीट कर रहा है तो इसको रियल फोकस भी हम कह सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड फॉर द कन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे भी रेस इंसिडेंट कर रही हैं पैरेलल, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज अपीयर टू कम. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड it always forms virtual images. So this focus is called virtual. इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं. Then next is focal length, the distance between P and F, that is pole and principal focus. So this length is called focal length, PF equal to F. And also relation between focal length and the radius of curvature, radius always double than that of the focal length, or you can say that focal length half of the radius. So images formed by mirrors can be of the following two types. तो two types की images हो सकती है, पहले मैंने बताया आपको mirrors के द्वारा. The image which can be obtained on screen is called the real image. It is formed when light rays after reflection actually intersect each other, कि असल में आपस में intersect कर रही हैं, तो हम उसको obtain कर सकते हैं स्क्रीन पे. तो image हमारे पास होगी real. And the image which cannot be obtained on the screen is called virtual image. तो अगर हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन में, जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल. इट इज फॉर्म्ड व्हेन द light rays after reflection intersect each other when
एक्सटेंडेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उसको एक्सटेंड किया जाता है असल में, देन दे कैन मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, आफ्टर दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड। सो दिस इज द विर्चुअल इमेज, और विर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। What are the uses of spherical mirrors? Spherical mirrors can form different forms of image depending on the nature of the spherical mirrors and the position of the object placed in front of them. These are used for various purposes. We are considering here some common uses of concave and convex mirror. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मिरर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म करते हैं। डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस फॉर्म्स होती हैं। तो कनकेव मिरर्स के यूज़ क्या है, कनकेव मिरर को हम मेकअप मिरर के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो at beauty parlor and shaving mirror because they form erect and enlarged image of the face of a person situated just near the mirror। अगर हम कनकेव मिरर के बिल्कुल पास में बैठेंगे तो जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी और इनलार्ज, वो बड़ा साइज बनेगा, जिसके कारण वो अच्छे से उसका फेस ऑब्जर्व होगा। दे आर यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स एंड इन प्रोजेक्टर्स। तो ये व्हीकल्स के हेडलाइट में रिफ्लेक्टर, जो टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स थे उसमें और प्रोजेक्टर में भी यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज बाय डॉक्टर टू फोकस लाइट, तो क्योंकि कॉन्केव जो होता है लाइट को फोकस करता है एक पॉइंट पे, सो दैट इज़ वाई डॉक्टर्स आर यूज टू फोकस अ लाइट ऑन स्पेसिफाइड ऑर्गन, जैसे कि टूथ पे, ईयर, थ्रोट, नोज एटसेट्रा। तो इसके साथ क्या होगा कि द डॉक्टर कैन सी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ दैट ऑर्गन, तो उस ऑर्गन की जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होगी। Concave mirrors are used in solar cookers and solar furnaces so as to focus the sun radiation at a place। जैसे हमने पहले पढ़ा कि कनकेव मिरर जो होते हैं वो लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, वो कन्वर्ज करते हैं लाइट को, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दे आर यूज इन सोलर फर्नेसेस एंड सोलर कुकर, ताकि जो पूरी लाइट है, जो सनलाइट उस पर फॉल कर रही है कनकेव मिरर पे, उसको एक पॉइंट पे फोकस करेंगे तो हीट का इफेक्ट ज़्यादा इंक्रीज होगा। सिमिलरली यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स। तो व्हीकल्स जो ड्राइवर मिरर होते हैं या व्हीकल्स में जो रियर व्यू पीछे की आवाज़ देखने के लिए मिरर यूज़ करते हैं, साइड पे होते हैं जो, तो उनमें जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। और इसको यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज कि ये इरेक्ट इमेज और डायमेंस्ड इमेजेस व्हीकल्स की शो करेगा। तो उसमें क्या होता है कि फील्ड व्यू इंक्रीज होएगा, ज़्यादा जो एरिया है पीछे आवाजाही का, ट्रैफिक का, वो ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। So that is why it is used as a rear view mirror in the vehicles. They are used in street light as a reflector so as to diverge the light over a larger area। तो convex mirror जो होते हैं वो लाइट को डाइवर्ज करते हैं, तो so that is why इसको रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है इनको स्ट्रीट लाइट में। जो लाइट है वो डाइवर्ज होती है ओवर ए लार्ज एरिया। Now the student, next topic is refraction through a prism. A prism is a transparent material bounded by two plane rectangular refracting surfaces inclined at an angle। Look at that, this is the prism। तो इसमें क्या है कि अपर एंड दिस इज द ट्रायंगुलर फेस, दिस इज आल्सो ट्रायंगुलर। सो तो अपर एंड लोअर फेस जो हमारे पास है वो ट्रायंगुलर होते हैं, और ये वाला जो सरफेस है दिस वन, दिस एंड थर्ड वन, दिस वन, ये जो सारे के सारे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसको बाउंड किया दो रेक्टेंगुलर सर्फेसेस ने, विच आर इनक्लाइंड एट सम एंगल। जिस एंगल पे ये इनक्लाइंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। A glass prism is used which has three rectangular surfaces and two triangular surfaces. Two rectangular surfaces act as the refracting surfaces and the third rectangular surface is base of the prism। Look at that कि अगर हम ऐसे इसको प्लेस करते हैं तो ये हमारे बिहेव करेगा एज ए बेस, तो ये दिस वन एंड दिस फेस ये दोनों बिहेव करेंगे एज ए रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। So we are going to perform an activity 4 to study the refraction through a glass prism। जैसे हमने स्लैब में किया था, similarly we are going to perform an activity to study the refraction through the glass prism। So इसके लिए हमें शीट ऑफ वाइट पेपर रिक्वायर्ड है, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिन्स एंड अ ग्लास प्रिज्म। लुक एट दैट, ग्लास प्रिज्म, वाइट शीट, पिन्स एंड ड्राइंग बोर्ड। तो वी हैव ऑल दीज अपरेटस। सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो हमने पहले इसको आउटलाइन करेंगे इसको,
ठीक है, इसकी आउटलाइन करेंगे कि अगर अपनी प्लेस से हिल भी जाए तो दोबारा हम इसको प्लेस कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट क्या है कि यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लगाया तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और दिस लाइन, इस लाइन को हम लाइन इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहाँ पे हमने एंगल मेजर करके विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो यहाँ पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करोगे, तो ये 30 डिग्री 40 डिग्री कोई भी वैल्यू हो सकती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी लाइन पे ऊपर हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ तक एक्सीड कर दिया। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, दैट इज द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हमने 2 पिन्स लगा दी, P1 और P2 लाइन के ऊपर। देन आफ्टर दैट हम दोबारा यहाँ पे प्रिज्म को प्लेस करेंगे। देन हम इस फेस के थ्रू, अब ये जो फेस है ये बेस होगा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है फर्स्ट, और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। इधर से हम ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों पिन्स को। लुक एट दैट कि हमें ये वो पिन्स की जो इमेजेस है यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो हम इसको फॉलो करके यहाँ पर भी पिन्स लगाएंगे। देन हम इसको पूरी की एक पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होगी। लुक एट दैट कि हमने नेक्स्ट पिन्स यहाँ पे प्लेस कर दी हैं, तो वो बिल्कुल उन पॉइंट पिन्स को फॉलो कर रही हैं जो हमने अदर साइड पे पिन्स लगाई हुई थी। नाउ लुक एट दैट, दिस इज द इनिशियल इंसिडेंट रे, दिस इज द initial path, but what happened when it passed through the prism, as we perform an activity with the pins and with the prism, what we observe, look at that, first refraction takes place from air to prism, then again refraction takes place from prism to air. Then two type of refraction takes place, one from rarer to denser, then denser to rare medium. Look at that, this is the base of the prism. तो क्या होता है कि रिफ्रैक्शन जैसे जैसे रिफ्रैक्शन हो रही है तो जो लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स द बेस, पहले देखिए यहाँ पर भी टुवर्ड्स द बेस और यहाँ पे अगेन टुवर्ड्स द बेस। तो इसमें दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। लुक एट दैट कि दिस इज द एक्चुअल पाथ, ये इनिशियल पाथ था लेकिन लाइट यहाँ तक बेंड हो गई, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन हो रही है, सो एज ए रिजल्ट रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, द लाइट रे इज डेविएटेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, एंड एज वेल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर हम इसको मेजर करेंगे, वैल्यू पुट करो तो हमारे पास ये वैल्यू इक्वल होगी। नेक्स्ट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through a prism, it is split into 7 colors। जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म से थ्रू पास करेगी तो वो 7 कलर्स में ब्रेकअप हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ splitting of white light into its 7 constituent colors is known as dispersion of light। the band of 7 color is called the spectrum। हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स। लुक एट दैट, ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, विप ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये स्प्लिट तो हो जाती है अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जो हमें बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नाउ लुक एट दैट, व्हेन लाइट पास थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। तो यहाँ से हल्के से 7 कलर आपके साथ सामने बन जाएंगे। लुक एट दैट, सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये 7 कलर्स, again I am repeating that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। you can pronounce it with cure। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अब रीज़न क्या है कि क्यों ये 7 कलर में ब्रेकअप होती है। जो वाइट लाइट है, एज वी नो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर, दैट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, और these 7 कलर्स इज डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म। तो जैसे ही ये प्रिज्म से थ्रू पास करते हैं तो वो डिफरेंट एंगल्स ऑफ डेविएशन के थ्रू डेविएट करते हैं। तो रेड कलर की जो डेविएशन सबसे कम होती है लेकिन वायलेट कलर की डेविएशन सबसे ज़्यादा होती है। सो क्या होता है कि वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बैंड होगा लेकिन रेड कलर सबसे कम बैंड होगा। सो दैट इज़ वाई कि ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। सो वाइट लाइट इज स्प्लिट अप इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स एंड अ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। 7 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम में बी resembled by the acronym Vibgyor। सो विबग्योर आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। देन हमारे पास रिकम्बिनेशन ऑफ 7 constituent colors of white light spectrum। so how we can recombine it? the 7 color rays contained in spectrum of white light produced by a glass prism can be recombined into white light again if these color rays are made to pass through another prism which is identical to the first prism but is placed in an inverted position। तो हमें दूसरी प्रिज्म, एक और प्रिज्म को प्लेस करेंगे उसके आगे, दैट इज लेकिन इन्वर्टेड में। लुक एट दैट, लाइक दैट, ये फर्स्ट प्रिज्म है, ये सेकंड प्रिज्म ऐसे प्लेस करेंगे, ये बेस हमारी तरफ है, ये बेस उसके अगेंस्ट है, उल्टी साइड में है। तो क्या होगा कि
यहाँ पे जब 7 कलर में ब्रेकअप हो रही है लाइट, लेकिन जैसे ही वो दोबारा पास करेगी थ्रू द सेकंड प्रिज्म विद द ऑपोजिट बेस, then what will be happen, it become recombine and white light will be obtained. Look at that, this is the placement, this base towards us but this is in opposite direction, so light will be recombined and white light will be obtained. So इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि जो प्रिज्म है वो कलर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट खुद मिक्सचर है 7 कलर्स ऑफ लाइट का जो कि स्प्लिट हो जाती है, तो प्रिज्म जस्ट स्प्लिटिंग करती है कलर्स की, लेकिन प्रोड्यूस किसी कलर को नहीं करती। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट इज स्प्लिट अप इनटू इट्स 7 कलर्स by the use of second identical prism set in an inverted position. The 7 colors of white light recombine so as to form white light again. Thank you, students.